Hello everyone. This is a session for those people who want to get updated what is happening around the world in global politics. As I have already discussed with you all students in my sessions, previous sessions as in class as well as on online, that there is a term known as coup. COUP, coup. We called it as blow up. What is blow up? Right now there is a circumstance which we need to study, that is of Sri Lanka, then uncertainties in Pakistan. Around Indian subcontinent, many of the countries are not stable. They are not having stable government. They are not having stable ethical points related to how they are going to manage their crisis, economical crisis, or business ties up with different countries. Some are pro-Chinese, some are pro-US, some are anti-Indians. So there are many factors. Today I am going to explain you and discuss the factors which are responsible for the Bangladesh coup. This is not the first time when Bangladesh is in a situation of coup. It was previously also. The Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina's resignation after a few weeks of violent protest. This violent protest is going on since July, and this is the same scenario which we have seen in Sri Lanka, in Pakistan also. So what is happening around the globe, if we see that these countries are not completely democratic. Here anytime the army can intervene between the matters of the government. That means entirely the president and prime minister are not having the full force or full power regarding the control of the organization or the establishment which are already in these countries. It is not the situation with India. Why? Because Indian constitution does not regulate or does not allow the army interference into civil matters. If an army person gets arrested in a civil matter, he is not arrested by the police, but he is arrested by the army police, air force police, or navy police, whatever department or whatever kind of wing he belongs. But in these countries, the constitution allows an army to intervene in the government decisions. So it is of Monday that she addressed the entire nation, and the army chief, not she was being told by the army chief that you have to leave the country within 45 minutes. That's a very short time span given to Sheikh Hasina to leave that particular place. So she flew from that particular place and she reached to Agartala, that's in India, and from there she came to Hindon Airport, and there she met Ajit Doval. You must all have heard the name of Ajit Doval. Now what is happening? Why did she flew first in India? Let's get back to the history of Bangladesh. Bangladesh was an East Pakistan, being actually got independence from Pakistan in the year 1971, if I am not wrong. 1971, with the interference of India, known as Bangla Bandhu, that was Mujibur Rahman. So Sheikh Hasina, if I would say that the country's first prime minister, Sheikh Mujibur Rahman, in 1975, Hasina's father, means Sheikh Hasina's father, like in India we called it as Mahatma Gandhi as father of nation. In Bangladesh, the father of nation is Mujibur Rahman. Now, Hasina's father was assassinated along the most of his family members in a military coup. Again, this was a military coup. Try to understand what is a coup. People usually don't understand all these things. They just read the news, they just listen the news. But the half knowledge is always dangerous. So get the full knowledge. This session might be a little bit long because I have to explain you many things. I cannot go ahead and explain you in a shorter term. If you want shorter term, there are various other apps and various other things. You can certainly go over there, certainly skip this video. But if you want to learn something, then you need to understand and you need to give your valuable time, because I am also giving my valuable time. Now this was the period of the military rule. Two more coups in the same year, with General Ziaur Rahman seizing power in the November 1981. So in the November on that same year 1975, these were the two coups actually happened. In 1981,
Ziaur Rahman was assassinated by the rebels who stormed into the government guest house in Chittagong city, which he was residing. The violence was believed to be the act of a small group of army officers, but the army itself remained loyal and suppressed the rebellion. This was not actually a coup, but this was a part of coup in the form of assassination. But after that, in 1982, Rahman's successor, Abdus Sattar, was ousted and the bloodless military coup led by the Hussein Mohammad Irshad, who took over as chief martial law administrator and later assumed the office of president. So this was in the year 1982. So it was a continuous loop of coups which are happening in this country, that is Bangladesh. So Bangladesh was not a peaceful country since 1971. Then after many years, since 1982, the latest coup which happened was in 2007. The army's chief staged a military coup and backed the caretaker government that ruled the country for the next 2 years until Hasina took power in 2009. Sheikh Hasina again came power in 2009. Unhappy with their wages and living conditions, revolutionary parliamentary forces killed more than 70 people in the capital of Dhaka, most of whom were army officers. The mutiny, as it was called, which had spread to nearly a dozen towns, ended after 6 days as the angry guards surrendered following a series of discussions. So this was again a chance of coup which actually the army was not able to materialize. In 2012, the Bangladesh army said it was foiled a failed coup attempt to retired and serving officers and was driven by a campaign to introduce Sharia or Islamic law throughout the country. Sheikh Hasina was not into the favor of Sharia or Islamic law. She is always favor in the democracy because her father was in the favor of democracy. If it would not be, then they would not have got the independence from Pakistan. 2024, this is the latest one which I am telling you. Bangladesh Army Chief Uz Zaman said Hasina has resigned following violent anti-quota protests and interim government would be formed to lead the country. Look, now the situation, let's understand the situation. What is all about this reservation and all this matter? You know, reservation was being abolished in the year 2017. Then many of the people of that Bangladesh country actually they filed a petition in the High Court of Bangladesh, and the Bangladesh High Court has ordered Sheikh Hasina to resume the 2018 quota for reservation. This followed till 2024, and in 2024 again the Supreme Court reversed and squashed the decision of reservation. So it is not the mistake of Sheikh Hasina, because once the High Court ordered to implement, in other words, if we say Supreme Court has squashed that judgment. Now what is the conclusion? Will India give political asylum to Sheikh Hasina? My conclusion says no. India never gives political asylum. First of all, India knows the condition of the entire Indian subcontinent. Giving asylum to someone is to start a bloodshed war between the two armies, and India doesn't want to provoke any kind of such conditions right now, as if right now. India knows that Sheikh Hasina's contender and the opposition parties are pro-Chinese. Recently, Teesta River project, all these projects were given to India, and they don't love India. But this is not the foreign policy of India. India believes that every country has their own internal matters. Like Moizu led the campaign of India out and won the elections. Same as these interim government or the new government will also follow this same criteria, anti-Indians or Indians out. So now the situation says that in global politics, China's interference in Indian subcontinent is continuously increasing. In this scenario, America comes. You know, America is having a commanding sections of group distributed all across the world.
and he has appointed one particular person. He's not an ambassador, but a person who provides the report of internal conflicts and border disputes to America each and every month. They have asked Bangladesh, Sheikh Hasina, that we just want a small space to build a US military setup to keep a close watch on China. Sheikh Hasina didn't give that particular place because Sheikh Hasina was believing that intervening of US army can lead to the situation and the consequences which right now Afghanistan is facing. Right now, somewhat like Pakistan is facing. Right now, somewhat like Syria is facing. Right now, somewhat like Libya is facing. Right now, somewhat like Iraq is facing. Right now, somewhat like other countries are facing who have given their land for US military bases. So we can say that this is a conspiracy which is created by US as well as for China. China and US has created this conspiracy because they know that China always want, only I would be the person who would be doing the business. No one is allowed to do that. America wants that China should be suppressed. India has clearly said, America, that we don't want your existence on our land. We are self-capable of handling each and every enemy, whether it's our neighbor or whether it's someone else. So America cannot force India regarding this. But America can force those countries which are politically unstable and financially deprived, like Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan. Pakistan is a puppet, we all know. Apart from that, Japan has also given its land. Japan is into a agreement with America for its personal security, personal threats. So every European country, every place, they are having their own support base or major bases for keeping a close watch on that particular area. So this is all happening in Bangladesh. Now, in Bangladesh, if I say 11 crore people are Indians and they are now in danger. The next step India will do, India can evacuate those people to our mainlands. Why? Because we cannot see the anti-Indian government killing our own people. And India should do this. I personally believe that. Because we are not intervening in their personal matters, but we are just bringing our people back who are living there. So this may be again a refugee situation of peoples from Bangladesh, which was earlier happened in 1971, after 1971. The same thing happened. Many refugees fled from Bangladesh and they reached to India. Many Bangladeshi refugee points are being established all over India. 2 or 3 names I know. One of the name is in Chandrapur, that is Ballar Shah. And Chandrapur is also having a refugee camp. Ballar Shah is also having a refugee camp. Now these camps are being converted into a permanent land. They are living, they are having jobs in Indian companies and Indian government firms. So again, this situation can arise that we can see another refugee batch flooding across from Bangladesh. For this, BSF and Army are on alert. Air Force and Navy is also on alert because they can choose many ways like waterways, sea, oceans, then tunnels, then fences. So this is an alarming situation for India because India is already having 145 crore people and adding more is a quite dangerous thing, I think so. So this was the session which I explained in the class. Now this is the session for those person who want to understand these things better. So whenever you read everything, you should know the history. Now let's understand in Hindi. हिंदी में समझने की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे देखिए कि जियोपॉलिटिकली हमारे आसपास के पड़ोस में काफ़ी अस्थिरता है. फाइनेंशियली बोला जाए या फिर डेमोक्रेटिक वे में बोला जाए, हर तरीके से प्रॉब्लम ही चल रही है. श्रीलंका का आपने हाल देखा है, पाकिस्तान का तो छोड़ ही दीजिए, वो पपेट है. हमने बांग्लादेश का हाल देखा है, म्यांमार जो है, म्यांमार में भी. तो ये जो कूप वर्ड है ना, जो मैंने बोला है अभी आपको, जो वीडियो में मैंने कूप लिखा हुआ है, कूप का मतलब होता है तख्ता पलट.
कैसा है, बहुत सारे लोग ना हिंदी में तख्ता पलट बहुत बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कूप, COUP। तो ये होता क्या है, ये होता है ऐसा है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं से भी आर्मी का इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। अगर मान के चलिए एक आर्मी एयरफोर्स नेवी का बंदा अगर मारा पीटी करते हुए पकड़ा जाता है कोई सिविलियन के साथ, उसका हो गया झंझट, दो हाथ, अब आर्मी एयरफोर्स वाला बंदा है, नेवी वाला बंदा है, तो हाथ छोड़ देता है वो, है ना, उसको वही प्रैक्टिस करवाई जाती है और गलत भी नहीं है। तो ऐसे समय पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस उसे पुलिस स्टेशन में बैठा के रखेगी, वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को फ़ोन करेगा और वहाँ से एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी की पुलिस आके उसको लेके जाएगी और जो भी उस पर कार्रवाई करनी है वो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के लॉज के तहत होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं से भी सिविलियन मैटर्स में आर्मी को इंटरवीन करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरवीन कर सकती है। आपने नोटिस किया होगा कोई भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का बंदा जो है वो लोकसभा, राज्यसभा में आकर अपना मत नहीं रख सकता। जो भी उसे रखना है वो डिफेंस मिनिस्टर को बताएगा, डिफेंस मिनिस्टर उनके बिहाफ में मत रखेगा या होम मिनिस्टर को बताएगा। तो अभी इस पॉइंट को हम समझते हैं कि बांग्लादेश की हिस्ट्री क्या है। देखिए बांग्लादेश ना 1971 में मुक्ति वाहिनी सेना के द्वारा आज़ाद किया गया और जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम मानते हैं वैसे ही वहाँ के राष्ट्रपिता जो है वो मुजीबुर रहमान है। अब देखिए मुजीबुर रहमान जो है उनका पूरा नाम है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। पहली बात तो जब हिंडन एयरबेस शेख हसीना पहुंची तो उसके पहले वहाँ का जो आर्मी जनरल थे उन्होंने शेख हसीना को बोले हम आपको 45 मिनट देते हैं देश छोड़ने के लिए, क्योंकि ये जो वायलेंस चल रहा था ये वायलेंस ना ये इसके ऊपर चल रहा था कि रिजर्वेशंस क्यों हटा दिया गया है, क्यों दे दिया गया। भाई क्या हो गया था 2017 में वैसे भी रिजर्वेशन अबॉलिश हो गया था बांग्लादेश में। फिर कुछ लोगों ने पिटीशन दायर करी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने बोला ठीक है, 2018 में बोला, फिर से गवर्नमेंट को बोला कि आप लागू करो, शेख हसीना ने लागू कर दी। अब ऐसा हो गया कि शेख हसीना ने लागू करी और उसके बाद किसी ने फिर से डाला पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं ये रिजर्वेशन पूरा कैंसिल करो, तो 90% रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। अभी जैसे रिजर्वेशन जैसी कैंसिल हुआ, देखो शेख हसीना की इसमें कोई गलती नहीं है, जो कोर्ट बोलेगा उसने कोर्ट को फॉलो करी क्योंकि वो डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी में भैया कोर्ट से बढ़ के आप नहीं होते हो। आप होंगे अपने घर के तुर्रम खां, आप अपने घर के होंगे बहुत बड़े गुंडे बदमाश, पूरा ख़ानदान आपसे डरता होगा, पूरा मोहल्ला डरता होगा, गली के कुत्ते आपसे डरते होंगे, मगर जो कानून है ना, कानून से ना हर इंसान, हर कीड़ा मकोड़ा जिस देश में रहता है ना उससे उसको डरना भी चाहिए, क्योंकि कानून से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ नहीं है कानून के सामने। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने हंटर मारा ना, सबको मानना पड़ता। कुछ लोग होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो नहीं मानती है, जो नहीं मानती है ना भाई तो उनका नेता अंदर भी जाता है। आप रिकॉर्ड्स निकाल के देख लो, जिसने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर को नहीं बोला है ना वो अंदर गया है। तो अभी हम लोग वापस बात करते हैं। तो फिर 1975 में क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान जो थे, शेख हसीना के फादर, जिनको हम राष्ट्रपिता बांग्लादेश का बोल सकते हैं, जैसे हमारे देश के महात्मा गांधी जी है, ठीक है, उनका ना असैसिनेशन हो गया, पूरी फैमिली को मार दिया। उस समय शेख हसीना की बहन बच गई क्योंकि वो उस समय बांग्लादेश में नहीं थी। अगर वो होती ना तो इनका पूरा परिवार उसी रात को ख़त्म कर दिया जाता था। ये पहला कूप था 1975 में। अब यही 1975 में ऐसे 2 और कूप हुए जिसमें जनरल ज़ियाउर रहमान ने भी नवंबर में, मतलब ये मान के चलो बॉस, अगस्त में मारे गए शेख मुजीबुर रहमान, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने के अंदर और 2 कूप हो गए। यानी हर जनरल जो आ रहा था ना वो जनरल ये सोचा था मेरे को देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना है। अब क्या भूत सवार था भगवान जाने उनके दिमाग में, या चाइना ने उनको क्या पट्टी पढ़ाया था। अब इतना तो मैं जानता नहीं क्योंकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था। मैं 1981 में पैदा हुआ, 1975 में नहीं हुआ। जो जनसंख्या अगर मुझे सुन रही है जो 1975 के पहले या 1975 में पैदा हुई, उसको इस बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। उसके बाद 1981 यानी 1981 में ज़ियाउर रहमान को भी मार दिया किसी ने, एक रेबल ने। अब रेबल ने मारा तो ये चिटगॉन सिटी में मारा, उसके घर में मारा जहाँ पे वो सो रहा था। अब बताओ इतना बड़ा जनरल उसके घर में घुस के कोई मार रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी लूप है और फिर से कूप होने वाला है, यानी फिर से कोई तख्ता पलट होने वाला है। ये तख्ता पलट का जो फंडा है ना ये लगातार हो रहा था। अब ये एक स्मॉल ग्रुप आर्मी ऑफिसर्स का था, इनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके रेबिलियंस को अंदर डाल दिया गया।
अब क्या हो गया, 1982 में रहमान ने अपना पीछे एक सक्सेसर छोड़ा था जिसका नाम था अब्दुस सुतार, और ये जो था ये ब्लडलेस, इसको ब्लडलेस मिलिट्री कूप लिया गया। इसको हुसैन मोहम्मद इरशाद हु टुक ओवर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, इसने क्या करा, इसको भी हटा दिया। 3 कूप पहले हुए, 2 कूप ये हो गए, ऊपर से एक 2 असासिनेशन हो गए। अब आप सोचो 5 कूप 2 असासिनेशन तो 1982 तक ही हो गए थे, 1975 से, यानी 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 7 ईयर्स के अंदर। 5 साल की तो भैया गवर्नमेंट होती, 7 साल के अंदर 5 कूप और 2 असासिनेशन, ये सोचने लायक बात है। इसके बाद 2007 में आर्मी स्टेज्ड मिलिट्री कूप हुआ जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट को छोड़ा दिए। सबसे खतरनाक चीज़, केयर टेकर गवर्नमेंट ही छोड़ गई। अभी का जो जनरल है वो बोल रहा है कि हम केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। क्या गारंटी केयर टेकर गवर्नमेंट काम करेगी? क्या गारंटी आप डेमोक्रेसी वापस लाओगे? आप तो उसको भी उड़ा दोगे, आप लोगों का तो रिकॉर्ड ही है। तो 6 से 7 कूप हो गए। 2009 में क्या हुआ, अब लोग अपनी वेजेस से बड़े परेशान थे, 70 लोग मारे गए। तो उसको देखते हुए क्या करें, कुछ गार्ड्स ने, कुछ 10-12 गार्ड्स रहे होंगे, उन्होंने क्या करे, आर्मी ऑफिस में घुसे और कईयों, मतलब 70 लोगों को पहले उन्होंने मारे और उसके बाद आर्मी ऑफिस में आके सरेंडर कर दिए। ये भी सरकार को गिराने की एक साजिश थी, यानी ये भी एक प्रकार का कूप ही था जो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मगर 2012 में बांग्लादेश आर्मी ने क्या किया, एक फेल्ड कूप फिर से ट्राई किया। इसमें उन्होंने क्या बोला कि शरिया या इस्लामिक लॉ लाना चाहिए। देखिए, मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा शरिया इस्लामिक लॉ में, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, पर मेरा मानना है डेमोक्रेटिक कंट्री में ना कोई मज़हब के आधार पे कोई लॉ नहीं होता। हिंदुस्तान है तो इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं का ही लॉ रहेगा। भाई हमारी कंट्री जो है ना सेक्युलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं और सबको अपने अपने धर्म और उसके रीति रिवाज मानने का पूरा हक है। वो किसी एक धर्म के एक रीति रिवाज नहीं मानेंगे। इस बात पे मैं क्लियर टिप्पणी करता हूँ, साफ स्पष्ट जिम्मेदारी के साथ टिप्पणी। और मैं मानता हूँ कि सबको सबका अधिकार है, सबके भगवान, सबके नियम, सबके रीति रिवाज को फॉलो करने का। अब यहाँ पे 2024 में लेटेस्ट हुआ। अब आप देखो ये कैसे लोग हैं, मतलब श्रीलंका का तो मैंने इतना विभत्स रूप नहीं देखा था, और मैंने पाकिस्तान का तो इतना विभत्स नहीं देखा। वहाँ तो ठीक है, लोग बिरयानी चोरी करके गए, बकरी लेके गए उठा के, मुर्गियाँ थी मुर्गियाँ लेके चले गए जनरल के यहाँ से, वो आर्मी का कमांडर था उसके यहाँ के पंखे लेके चले गए, कुछ लोगों को रेगुलेटर पसंद आया रेगुलेटर लेके चले गए। यार वहाँ तक तो ठीक है, आप यहाँ शेख हसीना के घर में घुस रहे हो, आप उसके बेड पे चलो लेट गए आप। अब ये कैसे स्टूडेंट्स है या जो बोल रहे हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट किया? मैं नहीं मानता स्टूडेंट्स है। अगर ये स्टूडेंट्स है तो फिर इनके टीचर्स कैसे होंगे या इनका एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा? आप किसी लेडी के कपड़े निकाल के हवा में घुमा रहे हैं, मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बड़े ख़राब लगता है कि किसी लेडी के आप वो कपड़ों को उठा के घुमा रहे हो जिसके बारे में घर में बात नहीं की जाती। ये एक शर्मिंदा करने वाली बात है मानवता के लिए। किस प्रकार के लोग हैं आप? मैं ये सिर्फ बांग्लादेश नहीं, मैं कोई भी कंट्री हो यार, वहाँ पे आप प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करना है ना भाई, तो इंडियन से सीखो, हमारे महात्मा गांधी से सीखो, लाठी खाते थे बैठे रहते थे, हमारे यहाँ के सेनानियों से सीखो, भगत सिंह से सीखो। भगत सिंह ने कभी कॉमन लोगों को नहीं मारे, भगत सिंह ने सीधा संसद में घुसे थे। अगर तुम में दम था तो तुम संसद में घुसना था ना भाई। तुम किसी के घर में घुस रहे हो, उसके कपड़ों के साथ गलत हरकत कर रहे, कितनी शर्म, मतलब आप अपने देश को शर्मिंदा कर रहे हो पूरी दुनिया के सामने। देखो वेस्टर्न कंट्री ना यही इसलिए बोलती है वेस्टर्न कंट्रीज़ की एशियन कंट्रीज़ में ना तमीज़ नहीं है, क्योंकि सच में हमारे एशियन कंट्री के लोग ना कुछ चीज़ें सच में बहुत बदतमीज़ी वाली करते हैं। है ही ज़्यादा बदतमीज़ी। ये बदतमीज़ी जो है ना, ये बदतमीज़ी अच्छी नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी नहीं है, जाहिल गवारों की निशानी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 57 ऐसी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। अब आप चाहे तो अपना गूगल निकाल के उसको चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ना सही नहीं है। तो आज का सेशन में आपको यही बताना चाहता हूँ कि मानवता को तार तार मत कीजिए। अब यार कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म का हो, वो अगर आपके देश का मुखिया है तो कम से कम उसके कपड़ों की तो इज्जत करो। अरे जला देते कपड़े,
होली मना लेते, होली का वैसे मनाते ही नहीं है वहाँ पर जला लेते कपड़े, प्रोटेस्ट कर लेते, घर जला देते, प्रधानमंत्री निवास जला देते, संसद जला देते। आप उनके कपड़ों को लेके हवा में गोल गोल हाथ से घुमा रहे हो और उछाल रहे हो। ये कैसा प्रोटेस्ट है? ये कैसा प्रोटेस्ट है? ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये कंट्रोवर्सी है। किसी नेता को इतना बदनाम कर दो कि वो देश छोड़ दे। अब वो इंडिया आई तो इंडिया ने तो उसको असाइलम दिया नहीं, बट इंडिया ने उसको सेफ पैसेज दिया। वो इंडिया पे क्यों आई? कि उसको इंडिया पे भरोसा है, क्योंकि भाई 1971 में इंडिया ने ही मदद किया था, पर इंडिया बोला भैया मैं असाइलम आपको नहीं दे सकता, तो वो अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में असाइलम मांग रही। और मैं आपको बता रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ उसको असाइलम दे भी देगी। यूरोपियन कंट्री में तो रूल है, आप यूके में जाओ। इंडिया में क्या हुआ? विजय माल्या ने क्या किया? फ्रॉड किया। फ्रॉड करने के बाद वो क्या हुआ? यूके भाग गया। यूके में आप 2 लाख पाउंड्स दे दो, 2 लाख डॉलर्स के करीबन, हाँ 2 लाख डॉलर्स आई थिंक सो, वो दे दो, आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती, सब मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा, कोई केस नहीं है आप पे। दूसरी कंट्री पे केस चल रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम ले लो, पैसा दे दो, आप आराम से रहो। अब बेचारी ये क्या करेगी? वैसी करेगी। इसने तो ये भी बोल दी कि मैं वापस ही नहीं आऊँगी, मेरी प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ है मैंने सब बांग्लादेश में छोड़ दिया, मैं वापस पॉलिटिक्स में ही नहीं आऊँगी। यानी इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्पिरेसी किया गया और इसमें 3 देशों का हाथ है। पहला अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को चाहिए एक लैंड जिससे वो कंट्रोल कर सके। अमेरिका की मंशा आपको क्या लगता है कि इंडिया का वो दोस्त है? इंडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है बॉस, अमेरिका सिर्फ खुद का दोस्त है। उसको चाइना को कंट्रोल करने की आड़ में वो बांग्लादेश में बैठेगा, वो श्रीलंका को भी कंट्रोल करेगा, हमको भी कंट्रोल करेगा, ताइवान पे भी नज़र रखेगा, चाइना को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और इंडिया की जितनी बॉर्डर्स है, बॉर्डर लैंड्स है और जितने मिनरल एरियाज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं अपना समुद्री सीमाएँ, उसका उल्लंघन करेगा, उसका उपयोग करेगा, जिसको मैरीटाइम बॉर्डर्स बोलते हैं। मैंने उस पर भी आपको एक पॉडकास्ट बना के दिया है। हम हिंदुस्तानी भी ना कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं। हम भी किसी के घर में जाएंगे, मारा पीटी करेंगे, उसका स्टूल फेंकेंगे, उसका कपड़ा फेंकेंगे, उसका डब्बा फेंकेंगे, ढक्कन फेंकेंगे। हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये पढ़े लिखों की निशानी नहीं है, जाहिल गवार लोगों की निशानी है, जाहिल गवार लोगों की। पढ़ा लिखा इंसान कभी ये हरकत नहीं करता, जाहिल गवार इंसान ये हरकत करता है, मानसिक विकृत रूप का इंसान ये हरकत करता है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, प्रॉपर वे में कीजिए, बिल्कुल हक है, डेमोक्रेसी में सबको हक है, पर प्रोटेस्ट का एक तरीका होना चाहिए। आप किसी के अंडरगारमेंट्स को हवा में नहीं उछाल सकते, ये गलत है। हिंदुस्तान में भी होता है। मैंने कई घटनाएं सुनी है, गांव में एक औरत को डायन बना के पूरे गांव में निर्वस्त्र करके घुमाया गया। ये कौन सा तरीका है घुमाने का? वो किसी की माँ है, किसी की बहन है। अब बुरा लगेगा मैं अगर कुछ लोग सुनेंगे इसको, तो आपकी माँ बहन को अगर ऐसी निर्वस्त्र करके घुमाए तो आपको कितना चिढ़ाएगा। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं वहाँ पर, उस चीज़ को देखो, 10 आदमी एक औरत के साथ गलत कर रहे हैं और वहाँ पे 100 लोग खड़े हैं और वो देख रहे हैं। अरे 100 लोग पकड़ के 10 लोगों को सूते ना, तो 10 लोगों की 206 हड्डियाँ जो है ना वो ट्वाइस हो जाएगी, टूट के दुगनी हो जाएगी। और उनमें से कोई नहीं करता। उनमें से कुछ ऐसे अच्छे होशियार लोग हैं जो अपना महंगा फ़ोन निकाल के उसका वीडियो बनाते। सेम चीज़ मणिपुर में भी हुई। देखो, आप हर चीज़ के लिए ना सरकार, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इस पे निर्भर नहीं रह सकते। कुछ पब्लिक को भी अपने अंदर से बाहर निकल के लोगों की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसी को मानवता बोलते हैं। एक दूसरे की रक्षा करना, इसी को मानवता बोलते हैं। अगर मालूम, अगर हर मानव एक दूसरे की रक्षा करना शुरू कर दे तो हमें किसी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की आवश्यकता ही नहीं है बॉस, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई किसी का दुश्मन ही नहीं रहेगा। सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे, सब एक दूसरे को प्यार करेंगे। पर वैसा एटमॉस्फेयर ना पॉलिटिकल नेता बनने देते हैं, ना हमारे कुछ बेरोज़गार अभिनेता बनने देते हैं, ना ही कुछ बेरोज़गार रिपोर्टर्स बनने देते हैं। कुछ बेरोज़गार एंकर रिपोर्टर्स का मैंने सुना इंटरव्यूज़, बड़ा दुख हुआ सुन के। वो लोग बोलते हैं ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, बड़ा खुशियाँ मना रहे। भाई तुम खुशियाँ क्यों मना रहे? तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो इंडिया वालों को कि भैया तुम भी उठो, देखो तुमको रिजर्वेशन अगर नहीं मिलता ना तो तुम भी ऐसे रास्ते पे उतर जाओ, ऐसी प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस जाओ, ऐसी राष्ट्रपति। भैया जी, ख्वाब मत देखो आप लोग। ये इंडिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान नहीं है, ये मालदीव्स नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया यहाँ पे तुम ऐसी हरकत करोगे ना, आर्मी वाले तुमको जो सामने उनकी नाइफ़ लगे रहती ना बंदूक की, उस पर रख के बैठा कर वहीं पे तुमको वहाँ पे बैठा के आसन बना देंगे तुम्हारा। ये हिंदुस्तान है। तो ऐसे भड़काऊ चीज़ें मैं बच्चों आपको भी बोलता हूँ और बड़े लोगों को भी बोलता हूँ,
बड़े लोग कुछ ज़्यादा समझदार नहीं हैं, बच्चों को तो हम नादान बोलते हैं, बड़े तो उससे भी बड़े बेवकूफ़ और नादान है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। मेरे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से ना बहुत लोगों को तकलीफ़ है, बहुत लोगों को ख़राब लगता है, अरे यार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। क्यों नहीं बोलूँ भाई, जब तुम स्ट्रेट होते नहीं हो तो मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के तुमको स्ट्रेट करना पड़ता है। टीचर हूँ, नहीं सुनोगे हंटर मार के सिखाऊँगा, पर सिखाऊँगा ज़रूर, सीख लो, न तो तुम्हें क्या तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तों को रटवा दूंगा, तुम्हारी जीन्स के अंदर घुस जाऊंगा। तो कैसा है, आप ना ये सब चीज़ें जब सुनते पढ़ते हैं ना तो फैक्ट्स को निकाला करो बेटा। ये ना मतलब सिर्फ टीवी चैनल्स पे कोई भी बना रहा है वीडियो, उसको देख ले रहे, नहीं, उसको जांचो, परखो, किसी कंट्री की हिस्ट्री पढ़ो। कूप वर्ड मैंने यूज़ किया, देखो बहुत लोग ना कूप वर्ड जानते ही नहीं है। कई लोग मुझे बोलते हैं तू क्या इंग्लिश जानता होगा, तुमसे लाख गुना अच्छी जानता हूँ बॉस। तुम्हारे जैसे 10 मेरे हाथ से निकल गए, इतने साल के करियर में कई बच्चे पढ़ गए, उनके बच्चे पैदा हो गए और उनके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आप कूप का वर्ड अगर नहीं जानते हो तो आप तख्ता पलट की तो बात ही मत करो। तख्ता पलट होता कैसे है वो नहीं जानते हो तो उसके बारे में सोचो मत। तो ये वीडियो बच्चों और उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं, और सीखना चाहते हैं तो स्पष्टवादी बनना सीखिए। जो स्पष्ट होता है ना वो हमेशा सीधी बात करता है, क्योंकि मेरे पिताजी एक बात मेरे को हमेशा बोलते हैं, मीठी दवा जल्दी ठीक नहीं करती, कड़वी दवा ही इंसान को ठीक करती है। तो मेरा कड़वा बोलना अगर आपको सही ज्ञान देता है तो यही मेरे शिक्षक होने का प्रमाण भी है और यही मेरे शिक्षक होने का सत्कार भी है। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो समझाया है उसे ध्यान से समझेंगे। उड़ी उड़ाई बातों की जगह अच्छे से हिस्टोरिकल फैक्ट्स निकाल के सारी चीज़ों को स्टडी कीजिए। मैंने जो चीज़ें निकाली है वो मैं अभी अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको देखकर वेरीफाई कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। विद दिस थॉट, कुछ बुरा लगा होगा अगर किसी को, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिसको अच्छी लगी होगी बात उसके लिए धन्यवाद चाहता हूँ। गुड नाइट।